Hello everyone. Good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday we discussed about force. Yes, electrostatic force, gravitational force. Yes. So student, today's topic is that pressure. Okay. This is the second part of this lesson. So student, today we learn about what is pressure and how pressure are exerted by liquid and gases. Yeah, and then last topic is that atmospheric pressure. Okay, so student, this is the last topic of this lesson. So we can learn this topic in detail through a book. Okay, so let's pressures. You have learned in class 7 that the strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learn that the wind and cyclones are caused by the differences in air pressures. So स्टूडेंट हमने क्लास 7 में पढ़े थे स्टॉर्म और साइक्लोन्स वाला लेसन. यस, तो हमने देखी थी कि जो रूफ टॉप पे रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा रहता है. कैन रूफ टॉप ऊपर के एरिया में बहुत ज़्यादा हमको ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है. यस, सो is there any relation between the pressure and force? Let us find out. So try to push or nail into a wooden plank by its hand. Did you succeed? Try now to push the nail by the pointed in. Could you do it this time? So आपको क्या करना है, पुश करना है आपको नेल को वुडन प्लैंक में उसके हेड की तरफ से. तो क्या वो वहाँ पे पुश होगा? नहीं. लेकिन अगर उसके टेल की तरफ से अगर हम पुश करेंगे तो यस ऑफकोर्स वो क्या होगा, वहाँ पे जब प्लैंक होगा वुडन प्लैंक में जो है वो पुश होगा. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ. तो क्या होगा, ब्लंट नाइफ में जल्दी होगा कि शार्प नाइफ से कटेगा? शार्प नाइफ से. यस, विच इज easier? शार्प नाइफ. डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, for example, the pointed end of the nail plays a role in making this task easier. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. So student, बहुत easy definition है कि pressure क्या होता है. Force acting होता है कहाँ पे? Unit area of a force. The force acting on a unit area of a surface is called a pressure. उसी को क्या कहते हैं? Pressure. Pressure मतलब क्या होगा? Force upon area on which act. ऑन विच इट एक्ट मतलब ऐसा एरिया कि जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अपॉन फोर्स ऑन विच इट एक्ट, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर. एट दिस स्टेज we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. Now, I now understand why the porters place a round piece of a cloth on their heads when they have to carry heavy loads. By doing this, increase the area of contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. So स्टूडेंट, आप लोग ने देखे जैसे कि ये जो पोर्टर है, मतलब जो, तो ये लोग क्या करते हैं, जो अगर वो अपने हेड पे हैवी ले जा रहे हैं तो क्या करते हैं, वो अपने हेड पे कुछ कपड़ा रखते हैं. क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, वेट नहीं लगना चाहिए, इसलिए. यस, note that the area is in the denominator in the above expression. So the smaller area, larger the pressure on a surface for the same force. तो क्या होगा, अगर छोटा एरिया है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा. The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. The same force therefore produce a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. तो क्या होता है, जो नेल की तरफ से अगर हम फोर्स एक्ट करते हैं तो जल्दी ही क्या हो जाता है, वुडन प्लैंक पे वो पुश हो जाता है. कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शूटर bags are provided with the broad straps and not thin strap, and why the tools meant for cutting and pushing always have sharp edges? Do liquids and gases also exert pressures? Does it also depend on the area on which the force act? Let us find out. सो ये जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर अभी हमको आगे में समझ जाएंगे, तो हम उसके लिए कुछ एक्टिविटी पढ़ते हैं. सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस. तो आपको एक एक्टिविटी दी गई हुई है. तो क्या करना है, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप. हमें एक प्लास्टिक पाइप लेना है या ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है. द लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर. उसका पाइप का जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रहना चाहिए. एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 से लेके 7.5 सेंटीमीटर.
Also take a piece of thin sheet of a good quality rubber, say a rubber balloon, stretch the rubber sheet tightly over the end of the pipe and hold the pipe at the middle, keeping in a vertical positions. Ask one your friend to pour some water in the pipe. Does the rubber sheet plug out? Note also the height of the water column in the pipe. Pour some water. Observe again the plug in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of plug in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो इस प्रकार ये जो रबर है यहाँ पे वाटर डालना है ना। तो क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि जो इसका ये हाइट ऑफ जो कॉलम है, प्रेशर कहाँ एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है किसके थ्रू, किसकी वजह से, वाटर के वजह से। यस, एट द बॉटम, जो उसका बॉटम का जो कंटेनर है ये किस पे डिपेंड करता है कि हाइट ऑफ इट्स, इसके जो कॉलम में जितना वाटर अगर रहेगा, देखो इसमें ज़्यादा वाटर है तो देखो यहाँ पे जो ये ज़्यादा ब्लॉक हुआ है ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में ये एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक बॉटल लेना है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, फिक्स सिलेंड्रिकल gas tube a few long near the bottom it is shown in the figure. You can do you can do so by slightly hitting one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. Make sure that the water does not leak from the joint. If there is any leakage, seal it with the molten wax. Cover the mouth of the glass cover the mouth of the glass tube with the thin rubber sheet as you did in it. So स्टूडेंट ये आपको एक्टिविटी दी हुई है, ये दिख रहा है यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को बॉयल वाटर लेना है, ठीक है, लिक्विड लेना है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो वाटर लिया हुआ है जो थोड़ा सा बॉईल हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे जो देखो pour some water in the bottle, is there any change in the block of the rubber sheet। तो यहाँ पे जो रबर रहेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ब्लॉक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, सो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। So note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Bottom पे नहीं करना है, साइड में करना है। तो क्या होगा, जो bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressures on the side of the container this as well. Let us इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो क्या होगा, इससे हमें पता चलता है कि जो लिक्विड यहाँ पे है तो वो क्या करता है, कंटेनर के जो वॉल्स है वहाँ पे क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो स्टूडेंट ये और एक एक्टिविटी दी हो गई हुई है, तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है। ओके, कैन यू से दैट द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, डू गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द देयर कंटेनर्स, लेट अस फाइंड आउट। सो स्टूडेंट क्या करना है, इसे होल्ड करना है तो उसे पता चल जाएगा प्रेशर एक्सर्ट होता है, इसकी वजह से वो बाहर आती है। ओके, so finally we find that gases to exert pressure on the walls of their container। तो what जो gases कहाँ पे होती है, exert करती है प्रेशर कहाँ पे, कंटेनर ऑफ द वॉल्स। इसके बाद में है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। सो यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। यस, आपको पता है कि हमारे आजू बाजू एयर्स रहती है। द एनवेलप ऑफ एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, जो एयर रहती है हमारे आजू बाजू, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको पता है सरफेस के अर्थ से बहुत ऊपर तक क्या रहती है, एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है, सॉरी एयर्स रहती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस एयर की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, वी नो दैट प्रेशर इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। वी इफ यू इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विथ एयर, then force gravity on the air in the cylinder is the atmospheric pressure। ओके, देखो जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन कॉलम यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो है ये यूनिट एरिया में क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होगा। ओके, उसके बाद फिर से और एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी के थ्रू आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आप लोगों को एक बार ये पढ़ना है। ओके,
The force due to air in a column of height of the atmosphere and area 15 centimeter 15 is nearly equal to the force of gravity on the object of mass 225 kg to 2250 Newton. The reason are not the reason we are not crushed under this force gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. तो क्या होता है कि हमारे अंदर का जो प्रेशर रहता है वो किसके इक्वल टू रहता है, हमारे जो बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल्स रहता है. तो इस वजह से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है. एंड द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड बैलेंस हो जाता है अंदर के बॉडी का और बाहर का. तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड, देखो इस प्रकार का प्रेशर रहता है हमारे हेड के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो. ओके, ये यहाँ पे एक आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ दिया हुआ है जर्मन साइंटिस्ट के बारे में. 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, इन्वेंटेड अ पम्प टू एग्जैक्ट एयर टू आउट ऑफ वेसल्स विद द हेल्प ऑफ दिस पम्प्स. सो स्टूडेंट ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है. जो क्या है, हेमिस्फीयर्स, हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर, देखो पुल कर रहे हैं. सो स्टूडेंट हियर आवर लेसन इज completed. So student, bye everyone.